ایز وی نو ہمارے آج ٹویٹر اسپیس کا ٹاپک ہے BYC's موومنٹ اگینسٹ بلوچ جینوسائڈ۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی نے بلوچ نسل کشی کے خلاف ایک باقاعدہ منظم تحریک کا آغاز کیا، جس کے حوالے سے ہم آج اپنے گیسٹ اسپیکر سے سوالات کریں گے اور ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہمیں گائیڈ کریں۔ اور آج ہم بات کریں گے کہ بلوچ نسل کشی کتنے اقسام میں اور کس کس شکل میں وجود رکھتی ہے، اور بلوچ نسل کشی کس طرح ہو رہی ہے، اور جہاں پر عدلیہ کا رول، میڈیا کا رول اور تمام تر اداروں کا رول ہم ڈسکس کریں گے۔ کی طرف چاہتی ہوں ڈاکٹر مارنگ سے۔ گودی، میرا یہ سوال ہے کہ جیسے ہم نے دیکھا کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جو حالیہ تحریک تھی اب وہ 5ویں فیز میں جا چکی ہے، تو اس بارے میں آپ ہمیں بتائیں کہ اس کا کیا مقصد ہے اور کیا مقاصد ہیں، اور پچھلے تمام فیزز کو ہم نے دیکھا مرحلہ وار بڑھتے ہوئے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بلوچستان بھر میں BYC ایک بہت مضبوط انداز میں پھیلی بھی، اور اب آگے مرحلے میں BYC جا رہی ہے، تو اس کے کیا مقاصد ہوں گے؟ سب سے پہلے تو میں تمام اسپیکرز کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے اس رات، مطلب شاید عید کی رات ہے، اور اس عید کی رات میں ہمارے اس اسپیس کے لیے ٹائم نکالا اور اس اہم موضوع پر وقت دیا ہمیں، بہت بہت شکریہ۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی اپنی بلوچ نسل کشی کے خلاف تحریک کے 5ویں فیز میں اسٹارٹ سے ہی بلوچ یکجہتی کمیٹی کا ایک ہی پروگرام اور ایک ہی مقصد رہا ہے کہ وہ بلوچستان میں جاری انسانی حقوق کی پامالیاں ہیں اور ریاستی جبر ہے، اس کے خلاف عوامی تحریک ہے، اس کو ابھار سکے، عوام میں اتنی شعور پیدا کر سکے کہ وہ اس ریاستی جبر کے بدلے، خاموشی کے بدلے وہ آ کر منظم ہو کر اپنی تحریک خود چلا سکے۔ بلوچستان وہ خطہ جس کو صرف اور صرف جس کے معدنی وسائل پر ہی ڈیبیٹ ہوتی ہے، جس کے معدنی وسائل کے آکشن جب لگائے جاتے ہیں تب بھی وہ زیر بحث آتا ہے میڈیا میں اور پاکستان کی باقی تمام سیاست میں، تو وہاں جو لوگ موجود ہیں ان کو اتنے عرصے سے اتنا اس حد تک دبایا گیا ہے کہ وہ اپنے بنیادی حقوق کے لیے بھی آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں، ایک خوف پھیلایا گیا ہے۔ ہماری پوری آبادی اس وقت ایک جبر کے ماحول میں زندگی گزار رہی ہے، اور ہمارا مقصد اور یہی رہا ہے بلوچ یکجہتی کمیٹی کا کہ ہم اپنے عوام میں، بلوچ قوم میں وہ ایک ہمت یا کریج وہ پیدا کر سکے جس کے تحت وہ عوامی تحریکوں پر، پرامن عوامی تحریکوں پر پھر سے بھروسہ کر سکے اور پھر سے آ سکے اور ایک عوامی جدوجہد کے ساتھ آگے بڑھ سکے، کیونکہ ہمارا مین جو موقف رہا ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، اور اس پر ہم کبھی بھی دستبردار نہیں ہوں گے کہ بلوچوں کو تمام وہ حقوق حاصل ہے جو پاکستان میں موجود جتنے شہری ہیں ان سب کو حاصل ہے، اور ہم اس اصولی موقف پر کبھی دستبردار نہیں ہوں گے۔ اس کے خلاف ریاست نے اپنے تمام ایک جھوٹا بیانیہ لایا گیا جس کے ذریعے جبری گمشدگی اور ماوراء عدالت جتنے قتل ہوئے، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز، ان سب کو متنازع کرنے کی بالکل بھرپور کوشش کی گئی، جس میں سیاسی پارٹیاں ہوں، سیاستدان ہو یا چینلز ہو یا تو پھر کچھ صحافی حضرات ہو، اور بلوچستان کے میر، معتبر، سردار جتنے بھی ہیں وہ سب پیش رہیں تاکہ یہ جو جھوٹا بیانیہ ہے ریاست کا اس کا ساتھ دیا جا سکے اور جبری گمشدگی اور بلوچ نسل کشی کا جو اتنا بڑا مسئلہ ہے اس کو متنازع کیا جا سکے۔ لیکن ہم اب بھی اپنے اسی موقف پر کھڑے ہیں اور ہمارے موقف کی تائید پورا بلوچستان کر رہا ہے۔ ہم کچھ خاندان یا ایک گروہ نہیں ہیں، ہم پورے بلوچستان کے موقف کو آگے لے جا رہے ہیں، پورے بلوچستان کا جو موقف ہے، اور ہمارے 5ویں فیز میں تقریباً بلوچستان میں جب سے ہمارا 5واں فیز اسٹارٹ ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ، رمضان کے پہلی رات کو ہی سوراب سے ایک شخص عبدالرزاق کو اغوا کیا گیا، اور اس پورے مہینے میں اگر میں اس پورے مہینے کا ڈیٹا اور ریکارڈ آپ کو بتاؤں تو پورے مہینے میں شاید دنیا کی تمام آبادی اپنے گھروں میں بیٹھ کر رمضان المبارک میں عبادتیں کر رہے ہوں گے، لیکن بلوچستان میں ہر دوسرے دن کوئی لاپتہ افراد کا لواحقین جو ہے نا کسی سڑک میں بیٹھ کر اس نے سڑک بند کی ہوگی، جس میں مکران کوسٹل ہائی وے یا گوادر، تربت،
मस्तूम, इसी तरह सूराब, ऐसे बहुत सी जगह है जहाँ पे लापता अफराद के लवाहिकीन ने जो है ना इस पूरे महीने में वो मुतवातर तौर पर एहतजाजें करते रहे। और बलोच जबरी गुमशुदगी का जो मसला है वो उसी तरह उसी संगीन सूरत-ए-हाल के साथ जारी है। पाकिस्तान के शहरों जैसे पंजाब, सरगोदा से भी बलोच स्टूडेंट्स को अगवा किया जाता है इसी महीने में, और उनके ख़ानदान वाले भी इसी तरह एहतजाज करते हैं। तो इस संगीन मसले की आप नोयत को कोई भी देख सकता है कि इतनी बड़ी तहरीक जो एक लॉन्ग मार्च के तौर पर उभरी, उस लॉन्ग मार्च में पूरे बलोचिस्तान से हर घर ने उस एहतजाज में अपना हिस्सा डाला, हर घर ने उस मज़ाहमत में अपना हिस्सा डाला, हर बच्चे ने, हर बूढ़े ने, हर नौजवान ने रियासत को पैगाम दिया पुरअमन तरीके से कि अब वो अपनी नस्ल कुशी के खिलाफ मुतहद तौर पर खड़े हैं। लेकिन रियासत का रवैया क्या रहा उस तहरीक के बाद से? उसका रवैया अभी तक वैसा ही है जैसे उससे पहले था। इस तरह अगर हम देखते हैं फरवरी में अरमान बलोच को और बशीर बलोच को, शकील को, सूबेदार, ये 4 वो लापता अफराद के लवाहिकीन हैं जो जिनके केसेस रजिस्टर थे और जो इस्लामाबाद में भी मौजूद थे, उनकी लाशें फेंकी गई। लेकिन ये भी कभी मीडिया में नहीं आया और इस चीज़ पर भी कभी भी कोई जुडिशल कमीशन तक भी बलूचिस्तान के लिए नहीं बनाई जाती ताकि वो इस बात की तहकीकात कर सके कि वो लोग जिनको जिबरी तौर पर गुमशुदा किया जाता है, अदारे क्यों उनको फेक इनकाउंटर में मारते हैं और उसके बाद उसको जवाबदा कोई नहीं करता, कोई जुडिशरी नहीं करती है, कोई मीडिया आकर उस पर कोई टॉक शो नहीं करता है। ये वो चीज़ें हैं जिस पर हम मुसलसल तौर पर बात कर रहे हैं और हम बात करते रहेंगे। हमारी तहरीक का आगाज़ ही बलोच नस्ल या बलोच कौम की बका के लिए था और वो तहरीक इसी तरह बलूचिस्तान के पूरे हर शहर, हर गांव, हर घर में उसी तरह मौजूद है। और आज हमने पूरे बलूचिस्तान में तकरीबन 25 से ज़ायद ऐसी जगह हैं जहां हम एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं और ये इस बात का सबूत है कि बलोच यकजहती कमेटी की जो तहरीक है उस तहरीक में पूरा बलूचिस्तान उसी तरह मौजूद है। उसमें बलोच कौम के साथ साथ पश्तून और बाकी तमाम कबाइल जो कौमें हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और इस तहरीक के साथ इसी तरह हम आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे 5वें फेज़ में हम ईद के दिन पूरे बलूचिस्तान में, क्योंकि इस मुजाहरों की सबसे बड़ी वजह ये थी कि हालिया अरसे में हमने ये देखा है कि रियासती मीडिया या रियासती अदारों की जानिब से जो बलोच मिसिंग पर्सनस का इशू है इसको मुतनाज़ा करने की जो शिद्दत है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है, जिसमें एक पूरा आप कह सकते हैं कि सिस्टमेटिक तरीके से बलोच लापता अफराद का जो बयानिया है उसको मुतनाज़ा किया जा रहा है। मैं ये कहती हूँ बैसियत एक सियासी वर्कर या बैसियत इंसान अगर किसी भी रियासत में एक भी शख्स का जिबरी गुमशुदा होना, एक भी शख्स का लापता होना, वो के तमाम अदारों से सवाल पूछने के लिए हम सक्रिय हैं। एक एक शख्स जिसको आपने 15-15 सालों से 67 सेलों में रखा हुआ है, शायद यह महाश है आपका, से कमाते उनकी फेक इनकाउंटर करके उनकी लाशें जब आपको एक फौज के तौर पर हमारे लिए वो हमारी कौम है, हमारे है जिसने उसको बहुत, और वो अब भी ईद के दिन भी इस इंतजार में बैठा हुआ है कि शायद बैठी हुई है कि शायद उसका बेटा वापस आएगा। तो ईद के दिन हम बैसियत कौम उन तमाम लवाहिकीन के साथ खड़े हैं और हम रियासत को भी ये पैगाम देना चाहते हैं कि वो कभी भी ये ना सोचे कि अगर वो आधी रात को आकर बलोचों के घरों में घुसकर उनके बेटों को उठाकर लेकर जाएगा तो शायद बलोच जो है ना इसके बदले में खामोशी इख्तियार करेंगे, बलोच मुज़म्मत का रास्ता अपनाएंगे। और ये लवाहिकीन ये तन्हा नहीं है और ये चंद नहीं है, ये इनकी तादाद पर तो हम अभी बहस भी नहीं करते। ये एक कलेक्टिव पेन है, ये एक ऐसा इज्तिमाई दर्द है, ऐसा इज्तिमाई तकलीफ है जिसकी वजह से हमारी पूरी कौम इस तकलीफ से गुजर रही है, वो तकलीफ जो आपने हमारे नसीब पे लिखी हुई है। और हम इसके खिलाफ मुतहद तौर पर मुज़म्मत का रास्ता अपनाते हैं और हम सब्र के साथ मुसलसल जद्दोजहद के साथ इस तहरीक को आगे ले जाएंगे। हमें आपकी प्रोपेगेंडा से, हमें आप जो भी तरीके कार अपनाएंगे, हमें पीछे धकेलने के लिए हम उतना ही महकम होकर, उतना ही
मजबूत होकर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता है ही नहीं। इस तहरीक को आप किसी भी नज़र से देखें, लेकिन हमारे लिए ये तहरीक हमारी बका की तहरीक है। हम अपनी नस्लों को बचाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी नस्लें भी, जो हमारी पिछली नस्लें हैं या जो हम गुजार रहे हैं, सड़कों में ईद गुजारें। हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि हमारी माएँ फिर से अपने बच्चों की जिबरी गुमशुदगी का दर्द और दुख बर्दाश्त करें। और इस तहरीक के लिए बलूचिस्तान के हर शख्स ने अपना इनपुट दिया है। वो किसी खौफ में नहीं रहे हैं। उन्होंने मुकम्मल तौर पर जब हमने कॉल दिया है तब वो सड़कों पे निकले हैं। आवारान जैसा इलाका जहाँ पर आपने अपने है ना, जो एक ट्रैफिक पुलिस फोर्स होती है, उसकी जगह भी आपने एक्सी को इसलिए बिठाया है ताकि वो हर दिन आवारान, मशके या ऐसे इलाकों में वो जो बलोच वहाँ आबाद है उनकी तजलील कर सके, उनको इतना तजलील कर सके कि वो मजबूरन अपने आबाई इलाकों को छोड़ सके। लेकिन फिर भी वहाँ पर भी ऐसे बहादुर, मैं कहूँगी उनको, क्योंकि इतनी डर के माहौल में, इतने खौफ के माहौल में, इतने जबर के माहौल में अगर वो अब भी पुरअमन तौर पर निकलते हैं और अब भी आपको ये पैगाम देते हैं कि हम अपनी नस्ल कुशी के खिलाफ मुतहद तौर पर खड़े और आपको अपने गैर कानूनी, गैर आईनी, गैर इंसानी तमाम पॉलिसियों को रद्द करना होगा, तो ये हमारी कौमी जद्दोजहद की बिल्कुल जीत है। और वो अदारे जो हर दिन सुबह से रात तक यही पैगाम देते हैं कि हमें बलोचों के साथ मुज़ाकरात करने हैं, हम उनसे यही कहते हैं कि वो एक पुरअमन तहरीक जो बलोच चला रहा है उसके खिलाफ आपने सिर्फ और सिर्फ वायलेंस का रास्ता अपनाया है। बलोच यकजहती कमेटी की टीम जब गवादर में मौजूद थी और जब वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर जो सैलाब ज़दा अफराद थे उनकी मदद करना चाहती थी और उनके लिए इमदादी कैंप लगाए हुए थे, तो आपने पूरे बलूचिस्तान में उन इमदादी कैंपों को भी उखाड़ फेंका, रातों रात उन पर छापे मारे, उनमें मौजूद जो अफराद थे उनको धमकाया। इससे साफ जाहिर होता है कि आप हमारी नस्ल को कभी बढ़ते हुए देखना ही नहीं चाहते हैं। आप यही चाहते हैं कि बलोच कौम की हर शक्ल में नस्ल कुशी की जाए और ना ही आने वाले वक्तों में शायद आप बलूचिस्तान से बलोच के वजूद को ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन हम ये मानते हैं कि ये शायद कोई भी बलोच की तारीख को पढ़कर देखे तो ये बलोच अपनी बका की जंग बहुत पहले से लड़ रहा है। आपसे पहले जो बरतानिया एक बहुत बड़ा कब्जागीर बनकर आया था, उस वक्त भी बलोच के पास वसाइल नहीं थे कि वो अपनी जंग लड़ सके, वो तहरीक लड़ सके। लेकिन एक चीज़ थी, वो चीज़ ये थी कि वो अपनी ज़मीन से बेइंतहा तौर पर मोहब्बत करते थे, बेगर्ज तौर पर मोहब्बत करते थे। उस मोहब्बत का कोई पैमाना नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो उस मोहब्बत को नाप सके। और अब तक वो मोहब्बत हमने अपने आबा व अजदाद से पाई है और उस पर हमारे शहीदों का खून है, जिन्होंने हमें हमेशा यही दर्स दिया है कि जब ज़मीन की बात आती है तो आप बाकी तमाम चीज़ें उससे दूसरे दर्जे में भी नहीं आ सकती है, ज़मीन सबसे पहला दर्जा है। तो बलोच यकजहती कमेटी अपने मिशन पर बिल्कुल कायम है। हम आगे आने वाले वक्तों में भी रियासत से पुरअमन तौर पर यही अपील करते रहेंगे, रियासत के कानूनी दायरे कार में आईनी तौर पर उसके आइन के अंदर जो एक शहरी के हकूक़ होते हैं, हम उन्हीं हकूक़ का मुतालबा करते रहेंगे। वो हमें जितना पीछे धकेलने की कोशिश करेंगे, हम पुरअमन तरीके से उसी तरह आगे आएंगे और हम उनसे वही सवाल पूछते रहेंगे कि अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है तो फिर बलोचों को पाकिस्तान के आइन के मुताबिक वो तमाम हकूक़ क्यों मुयस्सर नहीं है जो आपके आइन के मुताबिक बाकी शहरियों को मुयस्सर है। और पाकिस्तान के और बलूचिस्तान के अंदर आपके गैर आइनी, गैर इंसानी कामों को जो आपने नस्ल कुशी की पॉलिसी अपनाई हुई है उसको रोकने वाला क्यों कोई नहीं है। थैंक यू सो मच।